The first question that comes to our mind is how we developed. ठीक है, from where human developed. ठीक है, the first thing that comes to our mind is that we were taught is that human developed from monkeys. Yes or no? So monkey is our grandparent. From monkeys we developed. So if human developed from monkeys, why monkeys had not been converted into human? ठीक है ना? If human had developed from monkeys, देन मंकी क्यों ह्यूमन नहीं बन गया? मंकी आज भी क्यों मंकी है? ठीक है, शिम्पांजी आज भी क्यों है? गोरिल्ला आज भी क्यों है? बेबून्स आज भी क्यों है? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज, इमेजिन देयर इज अ ट्री. ठीक है, सो देयर इज अ स्टेम. ठीक है, एज द ट्री ग्रोज देयर विल बी ब्रांचिंग. यस और नो? एंड बाय द टाइम द ट्री ग्रोज देयर विल बी एनफ ब्रांचिंग, ह्यूज अमाउंट ऑफ ब्रांचिंग. द सिमिलर थिंग हैपेंड टू अस. monkeys, humans, baboons, chimpanzee, gorilla, all of them have a common ancestor. Their ancestor was same. Then there was branching. Monkeys developed into one branch, human developed another, gorillas developed another, chimpanzees developed another. Now the question is the common ancestor alive? No. That common ancestor is not alive. From where we developed, that common ancestor is gone. बट नाउ देयर इज स्पेशलाइजेशन. सब ब्रांच में स्पेशलाइजेशन हो गया. मंकीज हैड बिकम स्पेशलाइज टू सर्वाइव इन देयर एनवायरमेंट. ह्यूमन हैड बिकम बाइपेडल. ये सुनो, बाइपेडल मैंने दुटो पा. ये सुनो, ह्यूमन हैड बिकम बाइपेडल. ये सुनो, देयर इंटेलिजेंस हैड ग्रोन. मंकीज हैड बीन सुइटेबल टू लिव इन दैट स्पेसिफिक एनवायरमेंट वेयर दे बिलोंग. शिम्पांजीज, गोरिल्लाज, ऑल ऑफ देम हैड बीन एडाप्टेड, है ना, टू लिव इन द एनवायरमेंट वेयर दे आर बिलोंगिंग. राइट now the question comes that from where that common ancestor developed. ठीक है ना? We developed from monkey, that's not the case. And a human, monkey, all of them had a common ancestor, right? Had a common ancestor. Now the question comes from where that common ancestor came. Yes or no? Now we have to go back to 4 billion years ago. ठीक है? So the first human life that existed 4 billion years ago. Now imagine the scenario of 4 billion years ago. What was there in 4 billion years ago? In 4 billion years ago the earth created. ठीक है, earth created much before that, but 4 billion years ago the temperature was very high, more than 1000 degrees Celsius. Yes or no? And if the temperature is so high, along with that there was no free oxygen. So free oxygen नहीं था. The temperature was reducing. ठीक है, atmosphere was filled with hydrogen, ammonia, methane, but there was no molecular oxygen. ठीक है, temperature more than 1000 degree Celsius. इसके बाद there was precipitation होने के बाद अर्थ में क्या हुआ था कि अर्थ जब फॉर्म हुआ था, then much large holes were there, craters fall in the earth, so much bigger holes were there. एक टाइम के बाद there was huge precipitation. जब precipitation हुआ, then there was waterfall, yes or no, rainfall, and that craters get filled with water, and which we now known as ocean. So then the ocean falls, the ocean was created, and actually the first life form was created from that ocean. ठीक है? Now the question is, how was that first life form? The first life form that created was thought to be, ठीक है, listen to this very carefully. The first life form that created was not a cell. We know that if a organism is called living, it need to have cell. But the first life that was created didn't have any cell. ठीक है, there were free nucleotides. That free nucleotide joins to form RNA. ठीक है, that free nucleotide joins to form RNA, and that RNA assembled to form a creature. We can tell. नहीं, अभी तक नहीं आया. ठीक है, so that RNA assembled to form a particle. ठीक है, that RNA assembled to form a particle. अब ये particle living है या dead है? Can I call it living? No, I can't call it living. Imagine a virus. Can I call virus a living? No, I can't call virus a living. Virus becomes living only after it enters into a host. Other than that, virus is non-living. Similarly, that creature was a semi-living creature. ठीक है, that creature was a semi-living creature.
after millions of years later, that semi living creature, ठीक है, from that semi living creature the first cell arises, the first creature arises. The first creature that arises was called as FUCA, fuka, ठीक है. The first creature that arises was called, the first creature not, but the first cell that arises was called fuka, ठीक है, FUCA, first universal common ancestor. And fuka was the common ancestor for human, common ancestor for plant, algae, fungi, all the creatures that you know in the world, all of them had evolved from fuka. Fuka means first universal common ancestor. After millions of years later, fuka got converted to luca. Luca means last universal common ancestor, and that luca was believed to be a microbe. That luca was believed to be a microbe. Microbe means they are those prokaryotic cell, ठीक है, they were the prokaryotic cell, ठीक है. इसके बाद luca gets differentiated, ठीक है, luca gets differentiated, right. Now ये जो microbe that developed, luca that developed, last universal common ancestor, that was the common ancestor for all, luca, ठीक है. इसके बाद from luca there developed cyanobacteria. Cyanobacteria means the blue green algae, because luca was also a microbe. So from luca there developed cyanobacteria, that is blue green algae. Blue green algae were those cells, ठीक है, who used done photosynthesis. Now whenever the blue green algae did photosynthesis, they released oxygen as a byproduct. Yes or no? What was released as a byproduct? Oxygen, ठीक है. And that cyanobacteria, blue green algae, was present in the ocean. They did photosynthesis, released oxygen. A large amount of oxygen was released into the atmosphere, and that was the first time molecular oxygen came in the atmosphere. And this event is called the Great Oxygenation Event, and that was the first time the earth seen molecular oxygen. इसके पहले the earth was full of reducing atmosphere, only hydrogen. But after cyanobacteria came, oxygen released. That time earth seen the first molecular oxygen, and this is called as the Great Oxygenation Event. And then from cyanobacteria, okay, then from cyanobacteria our cell thought that for survival, means our cell actually finally found out that we are producing oxygen. Yes or no? Now क्यों ना हम ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी बनाएं. Yes or no? क्यों ना हम ऑक्सीजन को यूज़ करके एनर्जी बनाएं. Then from that leuca, from that specific cell, धीरे 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 यूकैरियोटिक सेल came, आर्किया, ठीक है. That leuca actually get differentiated into two branches, ठीक है. ल्यूका से दो ब्रांच हो गया, एक था प्रोकैरियोटिक वाला सेल, ठीक है, एक हो गया आर्किया. आर्किया मीन्स द यूकैरियोटिक वाला सेल. तो धीरे 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 माइटोकॉन्ड्रिया का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है. धीरे माइटोकॉन्ड्रिया का डेवलपमेंट हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाने लगा. और फ्रॉम दैट ल्यूका, द ल्यूका दैट वाज देयर, ल्यूका में क्या था, ल्यूका में, लिसन टू दिस वेरी केयरफुल, ल्यूका से साइनोबैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी डेवलप हुआ था. अब इस ब्लू ग्रीन एल्गी में दे कैन डू फोटोसिंथेसिस. नाउ धीरे धीरे इट गेट कन्वर्टेड इनटू क्लोरोप्लास्ट, ठीक है. तो ल्यूका से क्लोरोप्लास्ट बना, ठीक है. अब क्लोरोप्लास्ट जब बन गया, क्लोरोप्लास्ट कैन ऑल डू फोटोसिंथेसिस. सो फ्रॉम दैट ल्यूका, फ्रॉम दैट प्रोकैरियोटिक पार्ट, प्लांट किंगडम अराइज. So that's where the beginning of plant kingdom, that's where the beginning of chloroplast. So इस chloroplast से धीरे 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 plant kingdom बना. इसके बाद यूकैरियोटिक सेल डेवलप हुआ. ना यूकैरियोटिक सेल को लगा कि एक सिंगल सेल होके सर्वाइव करना इज टफ. ओके, सिंगल सेल होके सर्वाइव करना इज टफ. क्यों ना हम असेंबल कर जाए. देन बहुत सारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल सिंगल सेल असेंबल करके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बना. ना दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिज्म है सब में जो सिमेट्री दिखाई देता है दैट इज बायलैटरल सिमेट्री. बायलैटरल सिमेट्री मीन्स दुईटा पार्ट. ह्यूमन बायलैटरल सिमेट्री, पिग बायलैटरल सिमेट्री, बटरफ्लाई बायलैटरल सिमेट्री. एक्सेप्ट सम एक्सेप्शन लाइक हाइड्रा जिसमें रेडियल सिमेट्री दिखाई देता है. रेडियल सिमेट्री मीन्स ऐसा एक ऑर्गेनिज्म
तुम जिस भी हाफ से डिवाइड करो इट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ. But in human, in pig, if you divided only one plane through the center, that pass to the center, it will get divided into two equal half. So दुनिया में ज़्यादातर 99% organism is bilaterally symmetrical. Only few exceptions are radially symmetrical organism. इसके बाद now the question is why some organism evolved and why some organism don't evolve. ठीक है, like the first time the core concept of evolution was proposed by Sir Charles Darwin. ठीक है, so the core concept of evolution was proposed by Darwin. Now what Darwin told a very important thing, that is theory of natural selection. डार्विन ने जो थ्योरी दिया उस थ्योरी का नाम था थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. मीन्स नेचर सिलेक्ट दोज हु इज द फिटेस्ट. সে যদি ফিট না হয়, ফিট মিন্স fit according to the changing environmental condition. Like suppose imagine there was reproduction, all organisms do reproduction. Now whenever you do reproduction, some gene comes from the father, some gene comes from the mother, and then इस जीन में कुछ ना कुछ म्यूटेशन होता है ना. और म्यूटेशन होता है इसलिए जो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट. Yes or no, the new organism that gets formed is different from the parent because of certain mutation. Now sometimes this mutation is good, sometimes this mutation is bad. Now if this mutation is favorable with the changing environmental condition, then nature support or nature prefers that organism. Suppose मान लो you might have seen that there is a brown colored eye man और उसका जो बच्चा हुआ, ठीक है, उसका ग्रीन कलर्ड मीन्स आई में जो कलर होता है ना, ग्रीन कलर्ड आई बन गया. सो ये भी एक म्यूटेशन है. तो ब्राउन कलर्ड आई मैन से ग्रीन कलर मैन, एक बच्चा जो हुआ वो उसमें ग्रीन कलर्ड आई हुए. नाउ इमेजिन देयर इज अ फ्रॉग. जो फ्रॉग का कलर था वो था ब्राउन कलर्ड फ्रॉग. ठीक है, अब इस फ्रॉग का 4 बच्चा हुआ. इसमें से 3 बच्चे का कलर है ब्राउन कलर्ड और एक बच्चे का कलर है ग्रीन कलर्ड. तो 4 फ्रॉग हुआ. एक ब्राउन कलर्ड फ्रॉग था, उसका 4 बच्चा हुआ, 3 हुआ ब्राउन कलर्ड फ्रॉग, एक है ग्रीन कलर्ड फ्रॉग. अब जो ग्रीन कलर्ड फ्रॉग है वो तो पेड़ पौधे के साथ कैमोफ्लेज कर लिया. नाउ देयर केम अ प्रीडेटर स्नेक. तो स्नेक किसको खाएगा? ब्राउन कलर्ड फ्रॉग को. तो ग्रीन कलर्ड फ्रॉग सर्वाइव कर लिया. तो नेचर किसको सपोर्ट किया? ग्रीन कलर्ड फ्रॉग को. नाउ इमेजिन अबाउट डायनासोर्स, द वेरी बिग डायनासोर्स. नाउ যখন whenever nature wanted that you have to be big, you have to be monstrous to predate other animal, nature डायनासोर का साइज बढ़ा दिया. ना इसके बाद some species of dinosaur felt that we had become so big that our desire to eat had grown very much, but there is limitation in space, there is limitation in food. I cannot get sufficient amount of food and because of the enormous size আমার পেটই ভরতেছে না. সো এই ভেরি বিগ সাইজ ডাইনোসর কি সার্ভাইव করতে পারছে? दैट वेरी बिग साइज डायनासोर कुड नॉट सर्वाइव. इसके बाद धीरे धीरे एक और स्पीशीज का डायनासोर का इवॉल्व हुआ जिसका साइज छोटा है. और जो छोटे साइज का डायनासोर है दैट कुड फीड बिकॉज उसका स्टोमक छोटा है, फूड का डिज़ायर कम है, दे कैन सर्वाइव. समझ में आया? सो ये जो सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रिप्रोडक्टिव फिटनेस. और फिटनेस with the changing environmental condition. It does not matter if we are talking about the fittest, we are not talking about if somebody has biceps, triceps or not. 6-pack abs है, biceps है, triceps है, that's not the criteria. The criteria is with the changing environmental condition, क्या वो सर्वाइव कर पा रहा है या नहीं. अगर वो सर्वाइव कर पा रहा है तो नेचर इसको सपोर्ट करेगा. अगर नेचर ने सपोर्ट नहीं किया तो वो सर्वाइव नहीं करेगा. समझ में आया ना बात? इसके बाद नाउ द क्वेश्चन केम दैट आफ्टर देन धीरे धीरे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आया. इसके बाद यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रोटिस्ट आया, यूनिसेलुलर यूकैरियोट. इसके बाद मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स आया. ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे वर्टिब्रेटा आया. वर्टिब्रेटा मीन्स जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम है. ठीक है ना. इसके बाद धीरे धीरे आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर द होमो सेपियंस, that is humans also existed. Now how human came, that is a separate topic of discussion that we are not going right now at this moment, but that's how the basic evolution occurred.
ठीक है. सो द फॉर इवोल्यूशन, टू यू अंडरस्टैंड इवोल्यूशन यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट अबाउट डार्विन, द डार्विनियन कॉन्सेप्ट. राइट नाउ देयर आर मेनी पीपल हु क्वेश्चंस इवोल्यूशन, एंड इन द रिसेंट NCERT बुक्स ऑल्सो दे हैड रिमूव द डार्विन पार्ट. ठीक है. So they had removed the Darwinian part because now people even questions evolution. Why we don't know, but people question evolution. Even the government also raise suspicions. The government is also removing Darwin from their core concept. But evolution is true. Evolution is real. It happened, and we are constantly evolving. Yes or no? You can give. We can give some more effects. So one more reason that variation occurred is that mutation is occurring. Some mutations are good, those mutations are good, that is favored. अगर अच्छा म्यूटेशन हुआ तो नेचर सपोर्ट करेगा, अगर बुरा म्यूटेशन हुआ तो नेचर डिसमेंटल कर देगा, एंड दैट स्पीशीज विल नॉट एग्जिस्ट. ऐसे बहुत सारा स्पीशीज है जो एक टाइम में दुनिया में राज करता था, अब है ही नहीं. ऐसा बहुत सारा स्पीशीज है जो रिसेंटली दे आर डेवलपिंग, देयर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग. Yes or no? Recently means thousands of years ago, not that primitive. ठीक है. That species, that organism is evolving and they are constantly growing. Yes or no? Now, along with one factor that is mutation, there are some more factor that is responsible for evolution, and that important factor is called as genetic drift. ठीक है. That important factor is genetic drift. Now, what do you mean by this genetic drift? Genetic drift means, listen to this very carefully. Genetic drift means, now imagine something like there was a bison. ठीक है. There was bison in America. ठीक है. In South America there was bison. ठीक है. Now ये जो bison था, listen to this very carefully. There were two types of bison. Okay, there were two types of bison. ठीक है. Now in one type of bison जो सबसे पहले था, जो सबसे प्रिमिटिव था, जो सबसे सुपीरियर वाला बाइसन था, ह्यूमन हैड डिस्ट्रॉयड देयर पॉपुलेशन. ह्यूमन हैड डिस्ट्रॉयड देयर पॉपुलेशन बिकॉज उसका जो मीट था वो बहुत ज़्यादा कीमत में, इट यूज टू सेल इन वेरी हाई प्राइस. सो ह्यूमन हैड डिस्ट्रॉयड दैट बाइसन. इसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी को लगा, ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को लगा कि क्यों ना हम इस बाइसन को प्रिजर्व करें. ठीक है. क्यों ना हम इस बाइसन को प्रिजर्व करें, कंजर्व करें. सो क्या था, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. मैंने क्या बोला कि एक बाइसन का स्पीशीज था, ठीक है, जिसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा था. ठीक है. एक टाइम के बाद इतना हंटिंग हुआ कि उसका पॉपुलेशन धीरे धीरे बहुत कम हो गया. इसके बाद जब इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोई नेशनल पार्क आके उसको प्रिजर्व किया, सो दैट नंबर कैन बी 100. इस 100 नंबर से अब थाउजेंड लैक्स में वो बाइसन है. तो ये जो इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं बोटल नेक इफेक्ट. देखो बोटल है ना, बोटल मतलब नेक तक है, एक टाइम में नेके आए बोट से, इसके बाद धीरे धीरे द ऑर्गेनिज्म इवॉल्व. इसके बाद आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल ऑफ जीन फ्लो. ठीक है. जिसको हम बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट. Now founder effect means there were some population in Switzerland, ठीक है, स्पेन मीन्स यूरोपियन कॉन्टिनेंट में एक ट्राइब था. ठीक है. ये जो ट्राइब था उसका पॉपुलेशन वाज नियरली इन हंड्रेड्स. ठीक है. उसका पॉपुलेशन कितना था, नियरली इन हंड्रेड्स. नाउ सम ऑफ दिस पॉपुलेशन माइग्रेटेड फ्रॉम यूरोप एंड सेटल्ड इन यूएस. यूएस में सिएटल एक शहर है, सिएटल में जाके माइग्रेट किया. ठीक है. तो वो जो पॉपुलेशन यूरोप से सिएटल में जाके माइग्रेट किया, सिएटल में जाने के बाद अब ये जो ट्राइब है उसका एक कल्चर है कि ट्राइब के अंदर ही शादी होगा. सो व्हाट एवर मैरिज इज गोइंग टू अकर, दैट मैरिज इज गोइंग टू अकर विद इन द ट्राइब. मीन्स भाई बोन जा खुशी हो, बट ट्राइबर मध्य বিয়েটা হইতে হইব. दे वोंट मैरी फ्रॉम अदर कास्ट, अदर कम्युनिटी, दे वोंट अलाउ दैट मैरिज. अब क्या हुआ, यूएस में जाने के बाद उसका बहुत ज़्यादा इंटरमिंगलिंग हुआ, लेकिन उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया. ठीक है. तो यूएस में एक नया पॉपुलेशन आ गया, उन लोगों का एक नया पॉपुलेशन आ गया. लेकिन बात यह है कि ये जो ट्राइब था, इस ट्राइब का जो फाउंडिंग फादर था, उस फाउंडिंग फादर के बॉडी में एक रिसेसिव जीन था.
अब ये जो रिसेसिव जीन था, इस रिसेसिव जीन के कारण उसका जो फिंगर्स होता है बोथ इन द हैंड एंड इन द फीट बिकम शॉर्ट एंड दे ऑल्सो हैड पॉलीडेक्टिली एक्सेस फिंगर। तो इसके कारण इस रिसेसिव जीन ज़्यादा इनहेरिट हुआ क्योंकि वो लोग आपस में शादी करता था। तो इसके बाद अभी ये जो ट्राइब है इन यूनाइटेड स्टेट्स इन अमेरिका, ये जो ट्राइब है, इस ट्राइब में अभी भी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में क्या है, उस पॉपुलेशन में द हैंड द लिम्स वेयर मच मच शॉर्टर एंड अलोंग विद दैट देयर इज पॉलीडेक्टिली। समझ में आया? सो यू कैन ऑल्सो सी इन केस ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था वो ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या था, दे वर निग्रोज। इसके बाद फ्रॉम नेदरलैंड, फ्रॉम डच पॉपुलेशन फ्रॉम नेदरलैंड, पीपल केम फ्रॉम नेदरलैंड सेटल्ड इन। जब नेदरलैंड ने अटैक किया था साउथ अफ्रीका को, तब नेदरलैंड का कुछ पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका में आए, वो था उस पॉपुलेशन का फाउंडिंग फादर। इसके बाद एक नया पॉपुलेशन एराइज हुआ साउथ अफ्रीका में, दैट यू आर सीइंग एबी डिविलियर्स। क्या वो ओरिजिनली अफ्रीकन है? एबी डिविलियर्स इज नॉट एन अफ्रीकन। डेविड मिलर क्या वो अफ्रीकन है, ओरिजिनल अफ्रीकन है? नहीं, जिसका फाउंडिंग फादर तो नेदरलैंड का है। तो वहाँ से एक पॉपुलेशन इधर है, एक नया पॉपुलेशन एराइज हो गया। ठीक है, इसके बाद ये जो फेनोमेनन है इसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके बाद देयर इज जीन फ्लो। जीन फ्लो मीन्स एक पॉपुलेशन, सपोज समबडी इमिग्रेशन हुआ, एक देश से दूसरे देश में गया, वहाँ पे जाके एक नया पॉपुलेशन फॉर्म हो गया। इमिग्रेशन होता है, एक तो है इमिग्रेशन जाता है, इमिग्रेशन आता है। ये सुनो, सो इमिग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन फ्लो, नेचुरल सिलेक्शन, म्यूटेशन, इन सब के कारण वेरिएशन आता है। और ये वेरिएशन आफ्टर एक्यूमुलेटिंग फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स वी गेट अ न्यू लाइफ स्पीशीज। ठीक है, सो दिस इज अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इवोल्यूशन। समझ में आया ना? सुषमा ऑफ कर दे, ठीक है ना? अंडरस्टूड?